مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام 32واں سالانہ جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم 7 اکتوبر کو بعد نماز عشاء چنچل گوڑہ گورنمنٹ جونیئر کالج پر منعقد ہوگا۔ محمد مجید اللہ خان فرحت صدر مجلس بچاؤ تحریک کی زیر نگرانی 32واں سالانہ جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مولانا سید سرور چشتی گدی نشین آستانہ عالیہ خواجہ معین الدین چشتی غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ شرکت کریں گے۔ محمد امجد اللہ خان معتمد استقبالیہ نے بتایا ہے کہ مقامی مقررین مولانا حافظ و قاری مفتی غلام دستگیر اشرفی، جنرل سیکرٹری سنی علماء بورڈ فخر ملت جعفریہ ڈاکٹر شوکت علی مرزا، مولانا سید بختیار عالم امام و خطیب جامع مسجد مہدویہ مشیر آباد و دیگر بھی جلسے میں شریک ہوں گے۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا اور نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا۔ امجد اللہ خان خالد نے عاشقان رسول سے کثیر تعداد میں جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی گزارش کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہر سال ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی معنی شخصیت کو بلا کر اس جلسے میں ان کی مخاطبت کروائیں۔ یہ جلسے میں سابق میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں، جیسا مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی، شاہی امام جامع مسجد احمد بخاری صاحب، اور ہمارے توقیر رضا خان صاحب، اور آپ کے کلکتے کے شاہی امام۔ تو کئی دن سے ہماری بے چینی تھی کہ ہمارے مولانا سید سرور چشتی گدی نشین اور خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حیدرآبادیوں کا جو تعلق ہے، حیدرآبادیوں کا جو دوسرا گھر بولتے وہ اجمیر ہے، اور اجمیر سے ہم دکن والوں کا بہت ہی زمانے سے رشتہ تھا۔ خود میری دادی مرحومہ الحاجہ نصیب خاتون سال میں 2-3 بار اجمیر کو جایا کرتے تھے، اور غازی ملت مرحوم بھی کئی مرتبہ اجمیر گئے، میں بھی گیا۔ تو ایک دنوں سے بہت دن سے ایک تڑپ تھی سوشل میڈیا میں آپ کے بیانات وغیرہ دیکھ کر۔ تو اس مرتبہ مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے جو 32واں جشن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اس میں آپ کو دعوت دی گئی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ مولانا سید سرور چشتی گدی نشین و خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے ہماری دعوت نامے کو قبول کیا، اور وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے فرزند علامہ صاحبزادہ سید کامران چشتی بھی جو ہے وہ بھی ایک عالم دین ہے اور بہترین مقرر ہے، اور خود ان کی تعلیم بھی جو ہے جامعہ نظامیہ سے ہوئی ہے۔ تو ہم ان کو بھی دعوت دیے، تو وہ بھی ہمارا دعوت نامہ ایکسیپٹ کیے ہیں۔ تو یہ جلسہ 7 اکتوبر کے دن ہوگا، اور مقامی مقرر ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے پورے مقامی مقرر کی فہرست دی گئی ہے، جس میں ہمارے مولانا غلام دستگیر قریشی اشرفی کامل جامع نظامیہ، فخر ملت ڈاکٹر شوکت علی مرزا، حضرت پیر و مرشد سید بختیار عالم صاحب فاضل جامع نظامیہ، اور امام خطیب جامع مسجد مہدویہ مشیر آباد، عبد القادر ساجد صاحب ہمارے جو سیکرٹری ہے انہوں ہے، عبد الجبار رشدی سوریا پیٹ کے ہیں۔ اس میں کئی لوگ نعت خواں ہیں جو اپنی نعت کے ساتھ اور اس جلسے کو سجائیں گے۔ تو یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے کہ آنے سے پہلے سے کئی پریس والے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ان کا انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو میں سب کو آپ لوگوں کو دعوت دیا ہوں، میں جو بھی ہے مولانا آپ سے مخاطب کریں گے، آپ لوگ جو بھی ہے سوال ان سے کر سکتے ہیں۔ یہ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام 32واں جشن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 اکتوبر کے دن گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گوڑے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور پچھلے 32 سال سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہندوستان کے معینات علماء، مشائقین، دانشوران اسلام کو لا کر اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی، تاکہ لوگ ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس جلسے کی بنیاد مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ 1992 میں ڈالی تھی۔ تو یہ جلسہ پہلے جو ہے مغل پورہ گراؤنڈ پر ہوتا تھا، وہاں پر کمپلیکس بننے کے بعد میں
ये जलसे को फिर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में हो रहा है। आवाज़ आ रही जी पूछिए। सर ये कितने साल से कराया जा रहा है जलसा? नहीं, वो तो मैं बोलूँगा, आप खाली। सैयद सरवर चिश्ती, मेरे दाएं बाजू मेरे फर्जंद अकबर अल्लामा सैयद कामरान चिश्ती, जिन्होंने मौलवियत यहाँ जामिया निज़ामिया से की, उसके बाद आगे जामिया आरिफिया इलाहाबाद से मुकम्मल आलिम दीन हुए। मैं गद्दी नशीन खादिम ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 850 साल से हमारी लेगेसी है आस्ताने अक़दस पर। तो यहाँ अमजदुल्ला ख़ान साहब के मदऊ करने पे हम आए हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में इन्होंने दावत दी है और यहाँ हैदराबाद मशाइकीन की वजह से मारूफ़ है और 650 साल मुस्लिम सल्तनत भी रही है। यहाँ पर आसार कदीमा देख के मसरत होती है। उर्दू ज़बान भी ज़िंदा है और तमाम सलासिल के खानकाएँ यहाँ मौजूद हैं। आके बड़ी मसरत हुई। तारीख तक भी आपका ख़याम है? दोपहर 12 बजे तक 9 तारीख तक ख़याम है। अगर कोई मिलना भी चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बाबा नगर पे हमारे गेस्ट हाउस पर आकर मिल सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेंगे सर जलसे की लोग मिलने के लिए? कभी भी आप, मैं एक नंबर दिया ना फेसबुक पे, आप कॉल कर लीजिए, जब भी अवेलेबल है हम बुला लेते हैं। तो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मुबारकबाद देता हूँ। जगह जगह मैंने बैनर पोस्टर्स दिए, देख कर रूह खुश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद इस चीज़ से, इश्क़ रसूल से और आले रसूल से लबरेज़ है। नौजवानों के लिए ये है कि बच्चों को आला से आला तालीम दीजिए, इश्क़ रसूल, आले रसूल, औलिया कामलीन से मोहब्बत, सही तरबियत, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, क्या बात। और रातों को जागना बुरी चीज़ है। बस दीन की तबलीग करें, एक अच्छा मुसलमान होने का मुजाहरा करें। जलसे के अलावा जो है आपकी क्या दुआ रहेंगी अमजदुल्ला खान साहब के लिए, जैसे कि आप हिंदल वली महाराजा खाजा गरीब के दुआगो हैं और बिलखुसूस ये मेरे मेज़बान हैं। तो क्या इस बार इलेक्शन में जीत होंगी अमजदुल्ला खान? देखिए, मैं सियासी कोई सवाल नहीं जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि जलसे की तकारीब में नाच ये है प्योरली मजहबी तकरीबात के लिए यहाँ आया, ठीक है ना। और मेज़बान अमजद, देखिए मैसेज तो यही है कि बच्चों को आला तालीम माए तरबियत के साथ दें। रातों को जागना बुरी चीज़ है। मुस्लिम इलाकों में ये देखा जा रहा है कि रातों को जागा जाता है, दिन को देर से सो के उठा जाता है। ये ना करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें, रिश्तेदारों से मोहब्बत से पेश आएँ और असराफ़ बेजगह से बचे। हैदराबाद में शादियों में बहुत ख़र्चा होता है, ये सही नहीं है। हम मुसलमान हैं और ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और दीनी तालीम से दूरी भी बहुत यहाँ पे देखी जाती है। देखिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम लेने के बाद इंसान मुकम्मल होता है। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हम पे फ़र्ज़ है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। अल्लाह हमारे बच्चों पे अपना फजल बना के रखे और मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे और अक्ल सलीम अता फरमाए। यमानिल्लाह। ये हिंदुस्तान पे जो हालात हो रहे हैं, जगह जगह जो मॉब किलिंग हो रहे हैं मुसलमानों के, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। बहुत प्रेस वाले बेचैन हैं। आप हर मसले पर हिंदुस्तान में आवाज़ उठाते आप, तो ये हालिया जो पिछले कई जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, तो उसके ऊपर जानना चाह रहे हैं कि बेचैनी है वो लोगों में। देखिए, ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उन्होंने कई सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के चेहरे से नकाबें उठा दी। क्या बात। ठीक है ना। देखिए, अगर मुसलमान ये सोचता है कि इसके हटने से और उसके आने से भला हो जाएगा और बीजेपी को हराने का सिर्फ मुसलमानों ने ही ठेका नहीं ले रह सका। हमारे को अपना पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट चाहिए। हम बहुत सस्ते वोटर्स हैं, सिर्फ हमारी जान बख्श दो, हम आपको वोट दे देंगे। जान अल्लाह के हाथ में है और हिफाजत हम अपने खुद करने के लिए सक्षम हैं, काबिल हैं। मिल्लत में बहुत जान है, बहुत ताकतवर है, बुज़दिल भी नहीं है, बहादुर है, लेकिन हमारे दीन के और मिल्लत के ठेकेदारों ने इसे कमज़ोर किया है। अल्लाह उन सबको नेक हिदायत दे, हमको भी नेक हिदायत दे। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सख्त ज़रूरत है। इल्म
कलम की रोशनाई तमाम मसलों का हल है और इत्तेहाद रहे। मसलक के इख्तलाफात सियासी इख्तलाफात रहते हैं, रहेंगे। कौन सा समाज है जिसमें नहीं रहते हैं, लेकिन जब मिल्लत का मामला हो तो हमें इत्तेहाद का दामन थामना चाहिए और मिल्लत के भले के लिए, उसकी फलाह और बहबूदी के लिए सोचना चाहिए। दिलों से खौफ निकालें, डरने की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मजबूत हैं, कम नहीं हैं, किसी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। खामखा ये ख्याल पैदा कर लिया है कि हम कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप दूसरी मर्तबा सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं, पहले थे सेक्रेटरी, अब अंजुमन सईदातन खुदाम ख्वाजा, ये हम खुदाम ख्वाजा की जमात की एक नुमाया जमात है, तो हम ही में से ख़ानदान में से बनते हैं। तो ये तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरादरी ने ये मुझे शर्फ बख्शा है, उनका ममनून हूँ। तीसरी मर्तबा? हाँ, दिस इज़ द थर्ड टाइम। आपको कैसा महसूस हो रहा था तीसरी मरतबा भी जो है? अरे वो तो छोड़े, मुझे हैदराबाद आके बड़ी खुश मसरत महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं दयार इस्लाम में आ गए। कई साल से आप सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद, ये साल नहीं, हैदराबाद में दूसरी बार आया हूँ। एक बार अपने बच्चे के साथ जब जामिया निज़ामिया में दाखिला दिलाने आया था, उस वक्त आया था। आप कुछ बोलिए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।